So Nandini is also at Southex Center. She is in 2-year architecture program. Okay. So you must be knowing about Mehak from school. Mehak was my No. student. Mehak Gupta was from your school last year. She got through SP Delhi and she was studying physics with me. She got 95 in physics. Okay, I don't know. Right. So हमें अब सेकंड चैप्टर शुरू करना था, मोशन इन वन डायमेंशन. सो इन द लास्ट क्लास नंदिनी, इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था रेस्ट एंड स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन के बारे में. ठीक है. एंड टू नो द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन वी हैव टू हैव a coordinate system which is also called reference frame or frame of reference. So this is a थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. इसको बोलते हैं राइट हैंडेड थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जेड. सो राइट हैंडेड क्यों बोलते हैं? बिकॉज अगर हम राइट हैंड की फिंगर्स को एक्स से वाई की तरफ ले जाएं, देन थंब वुड बी आउटसाइड टुवर्ड्स जेड एक्सिस. सो दिस इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल राइट हैंडेड सिस्टम. So if there's some point, say some particle, some object, some body is there at point A and observer is at the origin, यहाँ पे observer है जो कि इस सब को observe कर रहा है. तो as time passes and the position of the particle does not change with time, तो हम क्या बोलते हैं? The particle is at rest. ठीक है. If the position of the particle is not changing with the passage of time, then we say that the particle is at rest. लिख लो state of rest की definition. State of rest. When when position of a particle when position of a particle does not change, when position of a particle or a body does not change with the passage of time. With the passage of time, the particle is said to be in the state of rest. The particle is said to be in the state of rest. So, in the state of rest, particle की position वही रहेगी, it won't change. लेकिन टाइम के साथ सपोज हमने पार्टिकल को किसी मोमेंट पे ऑब्जर्व किया, 10 o'clock पे ऑब्जर्व किया, उसको मैं बोल रहा हूँ T1, 10 a.m. And then we observe the particle at some other time T2, which is say 10.15. 15 minutes के बाद हमने उसको देखा and we see that the particle has shifted its position. Initially the particle was at A, now it is shifted its position after some time. Then we'll say that the particle is in motion. तो पार्टिकल इन मोशन को कैसे डिफाइन करोगे अब? If position of a particle or a body changes with the passage of time, we say that motion has taken place. ठीक है. लिखो when position of a particle when position of a particle changes with the passage of time with the passage of time, it is said that it is said that motion has taken place. Motion has taken place. बट ये याद रखना कि मोशन, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट, दे आर रिलेटिव क्वांटिटीज, है ना नंदिनी? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एग्जाम्पल मैंने दिया था.
state of motion or state of rest, they are relative. Example मैंने ये दिया था, if in a car or a bus some people are traveling, there are two friends A and B, and then you have another friend C, he is on the ground, तो C के रेस्पेक्ट में A मूव कर रहा है, B भी मूव कर रहा है ना, बट A के रेस्पेक्ट में B इज एट रेस्ट, राइट? B के रेस्पेक्ट में A इज ऑलवेज एट रेस्ट, A के रेस्पेक्ट में C पीछे जा रहा है, C के रेस्पेक्ट में A आगे जा रहा है, तो मोशन इज बेसिकली अ रिलेटिव क्वांटिटी। इसलिए मैंने बताया था नथिंग इन द यूनिवर्स इज द स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, इट्स ऑलवेज रिलेटिव। जैसे कि सपोज आई कैन से दिस बोर्ड इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी एट दिस मोमेंट, लेकिन अगर मैं ऐसे आगे जाऊंगा तो बोर्ड मेरे रेस्पेक्ट में पीछे जाएगा, ठीक है। सो मोशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, स्टेट ऑफ रेस्ट इज ऑल्सो रिलेटिव क्वांटिटी। अगर सपोज इस चेयर पे बैठ जाता हूँ तो विद रिस्पेक्ट टू द रूम एंड द सराउंडिंग आई एम एट रेस्ट, बट बट समबडी इफ इज ऑब्जर्विंग मी, सपोज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, somebody is observing me on the from the moon, तो उसके रिस्पेक्ट में दिस अ मोशन बिकॉज अर्थ रोटेट कर रही है, मून भी मूव कर रहा है, तो स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट इज बेसिकली रिलेटिव क्वांटिटी। तो दोनों चीजें समझ में आ गई, व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट। Yes. ऑल राइट, नाउ फिजिक्स में ग्राफ एंड द रिप्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पोजीशन को नॉर्मली एक्स या एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस और एक्स कि पार्टिकल ओरिजिन से कितना दूर है, ठीक है, एंड टी तो तुम्हें मालूम है, टी इज बेसिकली टाइम। तो मैं तुम्हें कुछ वैल्यूज दे रहा हूं और तुम्हें एस टी ग्राफ बनाना है, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। टी हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लोगे इन entire mechanics. S is the position in meters or whatever, could be in centimeter also. मैं कुछ वैल्यूज तुम्हें दे रहा हूँ, उसको यूज करके तुम्हें ग्राफ बनाओ और देन इंटरप्रेट क्या हो रहा है। So this is S, this is T. S is 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 0 सेकंड पे, यहाँ पे S मीटर में है और टाइम सेकंड में है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड्स, एक और लेते हैं 5 सेकंड। प्लॉट पोजीशन टाइम ग्राफ, अप्रोक्सीमेटली बना लो। देखो क्या होता है, ये ओरिजिन है। नंदिनी वो बुक खोल के देखी तुमने जो मैंने दी थी? सर जो आपकी वाली है, हाँ, जो मैं उसी से पढ़ रही थी अभी चैप्टर। गुड। तो उसमें से डेरिवेशंस याद कर लेना, वो सारे उनमें से एक आएगा पक्का। ओके सर। एमसीक्यूज भी ट्राई करना। कब है तुम्हारा? 16th? हाँ सर। जिया कोई टेस्ट है अभी कमिंग वीक, और इट इज आफ्टर स्कूल ओनली, आई मीन व्हेन स्कूल रीओपन्स? रीओपनिंग के बाद ना समर वेकेशन शुरू होगा। अच्छा, उसका सिलेबस पता है? मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट चैप्टर आएगा, आई एम नॉट श्योर, नहीं बता। फर्स्ट कब होगा? जुलाई में होगा ना फिर तो। जुलाई में कभी। ठीक है, फर्स्ट टू तो आ ही जाएंगे, फर्स्ट टू थ्री भी हो सकते हैं। हम्म। पर थर्ड वाला कराया नहीं है तो नहीं अच्छा, है। ओके। यहाँ पे हमारी 21 जून से लेकर 27 जून तक कोई क्लास नहीं है, ठीक है, दिस विल बी हॉलीडे वीक, नो क्लासेस। मैं ना इस हफ्ते नहीं आऊंगी क्लास के लिए। हम्म, तो मैं इस हफ्ते नहीं आऊंगी वहाँ पे, सैटरडे संडे। क्यों, क्या हो गया?
तो वो मेरे स्कूल में एक इवेंट है जो मैंने ऑर्गेनाइज किया है, तो उसमें। अच्छा अच्छा, चलो ठीक, कोई बात नहीं। वैसे भी देयर आई एम डूइंग सेट्स रिलेशन कर रहा हूँ ना मैं। हाँ, तो हाँ वो ठीक है। क्या चल रहा है? ओके। क्या आ रहा है इसमें? जब टाइम 0 सेकेंड था तो ये 1 मीटर या 2 मीटर ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, राइट। 0 सेकेंड पे 2 मीटर पर पॉइंट था। 1 सेकेंड पे भी 2 मीटर पे है। 2 सेकेंड पे भी 2 मीटर पर है। 3 सेकेंड पे भी 3 मीटर पे, एंड 5 सेकेंड पे भी 5 मीटर पे। इज इट ओके विद यू? समझ में आ रहा है क्या किया है मैंने? हम्म। जी हाँ। Yes. And then I join all these with a straight line, and you can see that is a horizontal line. अब इसको वैसे इंटरप्रेट करें तो क्या है? As with the passage of time, position of the particle is not changing. वो पार्टिकल 0 सेकेंड पे भी 2 मीटर पे था ओरिजिन से। जहां से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां से वो 0 मीटर 2 मीटर पे है। 1 सेकेंड पास हो गया तब भी 2 सेकेंड 2 मीटर पे, 3 सेकेंड पे भी 2 मीटर पे, 5 सेकेंड पे 2 मीटर पे। मतलब पोजिशन ऑफ द बॉडी और द पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। दैट मीन्स द पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब भी एस टी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, द पार्टिकल वुड बी एट रेस्ट। लिख लेना ये। whenever st graph is a horizontal line, it would be meaning that the particle is at rest. कोई भी डाउट है तो पूछना बेहिचक, ठीक है? जिया, मैंने तुम्हें मोशन इन 1D और फर्स्ट चैप्टर के दोनों के वो शेयर किए थे। हाँ जी, मैंने देखा। संडे आओगे तो मैं हार्ड कॉपी भी दे दूंगा तुम्हें। ठीक है। नंदिनी, ये क्लियर हो गया? यस। नेक्स्ट, अब मैं कुछ थोड़ा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन में। सेकंड ग्राफ करो। अगेन पोजीशन टाइम ग्राफ, आई हैव चेंज द वैल्यूज। ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या बन रहा है? डायरेक्शनल लाइन चल रही है। 1 0 पे 0 था। 1 सेकेंड पे 2 पे था। 2 पे 4 पे आ गया। 3 पे 6 पे आ गया। 4 पे नहीं दिया था मैंने, 5 पे 10 पे आ गया। एंड व्हेन यू ज्वाइन देम इट इज स्ट्रेट लाइन। दिस पॉइंट इज 5 कॉमा 10, है ना? दिस पॉइंट इज 1 कॉमा 2, लाइक दैट।
तो इस बार क्या हो रहा है, दिस टाइम द पोजीशन द पार्टिकल चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, है ना। एक और चीज नोटिस करो, इसमें क्या हो रहा है, स्पीड। 0 से 1 सेकंड में कितना ट्रेवल किया उसने, 2 मीटर, है ना। 0 से 2 चला गया। अगले 1 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, 2 से 4, 2 मीटर चला गया। अगले 1 सेकंड में कितना ट्रेवल कर रहा है, 4 to 6, अगेन 2 मीटर। एंड अगले 1 सेकंड में अगेन, अगले 2 सेकंड में सॉरी, 4 मीटर। देखो, 0 से 1 का मतलब 1 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, 2 मीटर। 1 से 2 सेकंड मतलब अगेन 1 सेकंड। अगले 1 सेकंड में उसने 4 - 2, 2 मीटर ट्रेवल किया। जी बात समझ में आ रही है नंदिनी। ऐसे। 2 से 3 सेकंड में मतलब 2 से 3 सेकंड मतलब 1 सेकंड हुआ उसमें, 6 - 4, 2 मीटर। 3 से 5 मतलब 2 सेकंड, 2 सेकंड में 4 मीटर ट्रेवल कर रहा है। देखो कोई डाउट है तो। मतलब कहने का ये हुआ, पार्टिकल इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या होता है, मोशन तो हो रही है। कौन सी मोशन है ये, यूनिफॉर्म मोशन, है ना। सबसे पहली बात कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब मोशन हैज टेकन प्लेस। विद द पैसेज ऑफ टाइम position of the particle is changing, मतलब motion has taken place. So this is the graph. Whenever the graph is an inclined straight line, it is of motion. लेकिन क्या हो रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है पार्टिकल। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की आप डेफिनेशन लिखो, यूनिफॉर्म मोशन इन यूनिफॉर्म मोशन in uniform motion, a particle covers a particle covers equal distance, a particle covers equal distance in equal interval of time. A particle covers equal distance in equal interval of time. अब वेलोसिटी कैसे निकालोगे, और वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करो वो भी कर लेते हैं। क्योंकि जब मोशन हो रहा है पार्टिकल का, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी स्पीड होनी चाहिए और वेलोसिटी होनी चाहिए। तो एज सच एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एवरेज वेलोसिटी इज बेसिकली चेंज, डेल्टा जब भी हम यूज करेंगे ना, डेल्टा इज बेसिकली फॉर चेंज। डेल्टा, इवन तो तुमने मैथ्स में 9th 10th में एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए होगा, ट्राइंगल के लिए, बट डेल्टा मतलब चेंज। व्हेन आई राइट डेल्टा एस, डेल्टा एस का मतलब होगा चेंज इन पोजीशन और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। एंड डेल्टा टी क्या होना चाहिए सिमिलरली, चेंज इन टाइम। सो डेल्टा एस का मतलब हुआ चेंज इन पोजीशन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, एंड डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम। चेंज हमेशा कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन एनी क्वांटिटी इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी। तो अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वी कैन फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। वी एवरेज को मैं सबस्क्रिप्ट लिख रहा हूं यहाँ पे। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी, S2 - S1 ओवर T2 - T1। देखो 11th में थोड़ा सा फिजिक्स वेरीड है, काफी वेरिएबल वाले चैप्टर्स हैं। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि तुमने 10th में 9th में किए हुए हैं, जैसे कि
मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ा था तुमने, टू सम एक्सटेंट मोशन पढ़ा था ना, लॉज ऑफ मोशन था, दैट इज ऑल्सो देयर दिस ईयर एज वेल, थोड़ा और डिटेल में है. देन वर्क पावर एनर्जी, मोर डिटेल, वो दैट इज ऑल्सो देयर. ग्रेविटेशन इज देयर. एंड देन यू हैव ए टोटली न्यू चैप्टर, रोटेशनल मोशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एसएचएम एंड वेव्स. ये सारा फिजिक्स 11th क्लास का है. बट द ओनली थिंग इज दैट लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स आर देयर, and that is why when you solve number of numericals, then you get more confidence and your concepts are clear. Physics is basically a subject which is based on concepts. कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उनका एप्लीकेशन जरूरी है. एप्लीकेशन मतलब उनके न्यूमेरिकल्स. इसलिए हम बहुत सारे न्यूमेरिकल क्लास में करेंगे. इससे ये एक क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में सपोज मैं आई वांट टू आस्क यू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t1 इज इक्वल टू 0 एंड t2 इक्वल टू 5. ठीक है. Second part, find average velocity between t1 is equal to 2 and t1 is equal to 3. करो जरा आराम से, there's no hurry. कोई डाउट है तो पूछ लो बिना. t1 इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग तुम s1 निकालो. t1 इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग s कितना है? s1 है 0. t2 इक्वल टू 5 के कॉरस्पॉन्डिंग s2 कितना है? 10. इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी. जब इस फॉर्मूले में डालोगे तो क्या आंसर आ रहा है नंदिनी? सर 2 आ रहा है. 2 डिग्री सेल्सियस. सर मीटर पर सेकेंड. हाँ, फिजिक्स में विदाउट यूनिट. सर इसमें वैसे लिखूं कि लाइक मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड -1? लिखा हुआ है, हाँ, कुछ मीटर पर सेकंड लगा, बेटर लिखा है ms-1. इट्स ए ओके. कन्वेंशन दैट यू डोंट राइट द नो यूनिट इन द डिनोमिनेटर, यू राइट इन द न्यूमरेटर ओनली, -1 करके. जिया तुम्हारा हो गया. So first part हमने हाँ, 10 - 0 डिवाइड 5 - सेकेंड पार्ट कर लो अब. सेकंड में कितना आ रहा है? 2 meters. राइट, सेकंड का भी है नंदिनी, 2 ही आ रहा है. यस सर. किया या ऐसी बोल रही हो? नहीं सर 2 आ रहा है. हम्म. सर 2 ही आ रहा है. s1 is 4, s2 is 6. So when you substitute, average velocity is 6 minus 4 divided by 3 minus 1, that is 2 meter per second. एंड राइटली सो, हम कुछ कोई सा भी टाइम इंटरवल ले लें, हमारा आंसर हम सेम ही आएगा, बिकॉज द पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म मोशन, है ना. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही है कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज द सेम थ्रू आउट द मोशन. तो यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा तुम्हें ग्राफ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन नजर आएगा. ठीक है. एक और चीज, ये लाइन सपोज टाइम वाले एक्सिस के साथ कुछ थीटा एंगल बना रही है. सो इफ आई आस्क यू, टेल मी
व्हाट इज tan थीटा इन दिस ट्रायंगल, बताना जरा। इस ट्रायंगल में tan थीटा कैसे निकालोगे? परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना? 2 degree. Not 2. कितना आ रहा है? 6/3. दिस इज 6 एंड दिस इज 3। 6/3 दैट इज 2। इसको स्लोप भी बोलते हैं, tan थीटा को। स्लोप 2 आ रहा है। नंदिनी, ग्रेडियंट, कैम्ब्रिज में ग्रेडियंट बोलते हैं, सेम थिंग। हाँ, दोनों ही बोलते हैं ठीक है, इसे। तो स्लोप 2 आ गया। हाँ। अब लेट्स ट्राई टू इंटर रिलेट दीज टू थिंग्स, ठीक है? जब तुम इसको इंटर रिलेट करोगे तो ये तुम्हें पता लग जाएगा कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। लिख लो, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालें तो उससे हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। तो तुम यहाँ किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकाल लो, आंसर वही आएगा, 2 आएगा। ये वाला ट्रायंगल करके देखो तब भी वो 2 आएगा आंसर। ये वाला ट्रायंगल बड़ा वाला लेके देखो तब भी 2 आंसर आएगा। हर सिचुएशन में आंसर सेम आएगा, बिकॉज इज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है? जबकि इसे पिछला वाला ग्राफ था, प्रीवियस ग्राफ में, अच्छा वो तो मैंने हटा ही दिया था इनफैक्ट। तो प्रीवियस ग्राफ में क्या हो रहा था? इस वजह हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है? हम्म एनी हॉरिजॉन्टल लाइन हम्म। is basically parallel to horizon time axis, 0 डिग्री। tan हम्म। जीरो कितना होता है? tan ऑफ जीरो इज 0। हम्म। तो पिछली वाले ग्राफ में, हॉरिजॉन्टल लाइन वाले ग्राफ में स्लोप 0 था, तो उसकी वेलोसिटी भी कितनी आ रही थी? 0 थी, बिकॉज पार्टिकल वाज एट रेस्ट। हम्म। तो कहने का मतलब, जब भी यू बिन गिवन पोजीशन टाइम ग्राफ, यू कैन डेफिनेटली फाइंड इट्स वेलोसिटी। ठीक है, अब एक तुम्हें और ग्राफ दे रहा हूं मैं। दो पार्टिकल हैं ए एंड बी। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, नंदी तुम्हारा टेस्ट है ना अभी स्कूल में, ये आ भी सकता है। सपोज ए एंड बी आर टू पार्टिकल, देयर पोजीशन टाइम ग्राफ हैज बीन गिवन। ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। माई क्वेश्चन टू यू इज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ए। करो। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल्स आर गिवन टू यू, टेल मी द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज। अभी तुमने कॉन्सेप्ट समझा है? स्लोप मतलब tan थीटा गिव्स यू वेलोसिटी। वो वैल्यूज पता है तुम्हें? tan 30, tan 60, tan 45, याद है? यही मैंने याद की थी। याद नहीं है तो ये टेबल बना सकते हो। 0, 30, 45, 60, 90। राइट 0, देन 1, 2, 3, 4। उसके बाद 4 से डिवाइड कर दो, और फिर देन यू टेक द रूट। So this is 0, this is 1/2, this is 1 by root 2, root 3/2, and this is 1.
तो दिस इज साइन जीरो, साइन के वैल्यूज हैं ये। साइन जीरो इज जीरो, साइन 30 इज हाफ, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3। साइन की वैल्यूज आ गई है ना। उसकी कॉस में क्या करते हो, रिवर्स हो जाता है। फॉर कॉस इट बी जस्ट रिवर्स्ड, उल्टा लिख दोगे 1√3/2, ये 1/√2, दिस इज 1/2, दिस इज 0। एंड फॉर tan you know is sine by cos, tan theta is sine theta by cos theta. So 0 by 1 will be 0. This would be 1/√3. This would be 1. This would be √3. This would be not defined. एंड ट्रिगोनोमेट्री में सारा ये याद करना है, इससे भी और ज़्यादा डिटेल में करेंगे ट्रिगोनोमेट्री हम लोग, तो ये सारा याद हो जाएगा धीरे धीरे। सर हाँ फिर हम लोगों ने मैथ्स में वो थर्ड चैप्टर शुरू किया है, हाँ। उसमें जो 60 फॉर्मूलाज होते हैं वो सारे याद करने पड़ते हैं। कौन से वाले फॉर्मूले? सर वो जो सारे कॉस, हाँ मतलब वो कॉस। याद हो जाएंगे वो सारे, मैं डिराइव कराऊंगा ना क्लास में, तो वैसे भी याद हो जाएंगे। ओके। हम क्या करेंगे, फॉर्मूले लिखेंगे नहीं, डिराइव करेंगे। तो आई चेक एंड देन टॉक। शाम को अराउंड 8-8:30। हाँ हाँ हाँ। सो हियर वी कैन सी दैट बी की अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, बी कितना एंगल बना रहा है 60, तो बी की वेलोसिटी होगी tan 60। व्हाट अबाउट ए की वेलोसिटी, ए इज मेकिंग हाउ मच एंगल 30 डिग्री, विल बी tan 30। tan 60 देखो वहां से कितना है √3, tan 30 इज 1/√3। सो ऊपर चला जाएगा, √3 इंटू √3 इज 1, 3। तो VB by VA is coming out to be 3:1। ठीक है। तो now we know one concept, that slope of position time graphs gives us velocity। आगे बढ़े। Displacement and distance, the two things both have same unit, same dimensional formula, both are length, unit is meter or centimeter, and dimensional formula is L, but there is a slight difference between the two, वो हम समझते हैं क्या होता है। सपोज दिस अ पार्टिकल ए, इसकी पोजीशन ये है, एंड आफ्टर सम टाइम इट्स पोजीशन इज हियर, दैट इज इट मूव्स फ्रॉम initial position to final position. There are different paths. This is path number 1, this is path number 2, and this is yet path number 3. So particle moves from A to B. A is initial position, B is final position। डायग्राम बनाओ एक बार। So particle moves from A to B. तुम्हें ना आफ्टर सम टाइम आई लॉग इन इनटू द पोर्टल वेर यू कैन व्यू ऑल द क्लासेस, सारी क्लासेस रिकॉर्ड हो जाती हैं, वो सारा यू कैन वॉच एनी टाइम यू वांट। सो पार्टिकल इज इनिशियली एट पोजीशन ए, इट इज डिस्प्ले, इट मूव्स एंड रीचेस टू बी। तीन डिफरेंट पाथ से जा रहा है, लेकिन इनिशियल पोजीशन तीनों में सेम है,
तीनों पाथ में, और तीनों पाथ में फाइनल पोजीशन भी सेम है। तो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? कुछ पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जिया? Shortest distance covered. शॉर्टेस्ट। Distance covered between 2 points. ओके, नंदिनी व्हाट डू यू से? Shortest distance. हाँ, लिख लो इसका, इसकी डेफिनेशन लिखो। डिस्प्लेसमेंट इज displacement is the shortest distance. Displacement is the shortest distance between initial position and the final position. Displacement is shortest distance between initial position and final position. It is a vector quantity. It is a vector quantity. दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, वेक्टर एंड स्केलर। तो डिस्प्लेसमेंट इज a vector quantity. What is a vector quantity? A physical quantity which has magnitude as well as direction. Direction. जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज. व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक करंट? इज इट वेक्टर और स्केलर? इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट हैव अ डायरेक्शन, इट merely follows the path, ठीक है, ऑफ द वायर. जिस डायरेक्शन में वायर को मूव कर दोगे उसी डायरेक्शन में करंट हो जाएगा. सो इट्स अ स्केलर. Scalar quantity does not have a direction. It has only magnitude like mass, temperature, distance, speed. All these are area, volume. These are scalar quantities. So displacement is a vector quantity. तो अगर पार्टिकल पाथ नंबर 1 से जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? कैसे निकालोगे? उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन. ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया. अगर पार्टिकल पाथ नंबर 2 से जा रहा है फिर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा बताना मुझे. अगर वो ऐसे जा रहा है, मैं यहाँ दोबारा बनाता हूँ, वो ऐसे अगर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? ऑल यू हैव टू डू इज, जो फाइनल पोजीशन है उसको इनिशियल पोजीशन ज्वाइन कर दो. तो अगर पार्टिकल पाथ नंबर 2 से जाएगा तब भी उसका पोजीशन, उसका डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा. और अगर पार्टिकल पाथ नंबर 3 से जा रहा है तब भी उसका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा. That means displacement of the particle is independent of the path. लिख लो. Displacement of a particle is independent of the path taken. It only depends upon initial and final position. It only depends upon initial and final position of the particle. So now you know what is displacement is. ठीक है. जब भी हमें किसी पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो उसका फाइनल पोजीशन को इनिशियल पोजीशन से ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइन से, एंड दैट स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट. और डायरेक्शन क्या होगी हमेशा? इट्स डायरेक्शन वुड बी ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू टूवर्ड्स द फाइनल पोजीशन. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इस डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया. एक और चीज समझ में आती है, अगर कोई पार्टिकल घूम घाम के वापस सेम पॉइंट पे आ जाए तो फिर क्या होगा उसका डिस्प्लेसमेंट? अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड कम्स बैक टू द सेम पॉइंट ए, फिर क्या Zero. होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका? Zero. Zero. 0. ठीक है. सो इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज द सेम, then its displacement will be 0.
if initial and final position of a particle is the same, then its displacement will be 0. अब हम आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल? इसकी डेफिनेशन लिखो। डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल, डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल इक्वल्स टू, distance of a particle equals to the length of actual path covered. Distance of a particle equals to the length of actual path covered. ठीक है? Length of actual path covered. तो अब मुझे बताओ, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3, 3 पाथ थे हमारे पास। इन तीनों में डिस्टेंस सपोज d1 d2 d3 है, तो और डिस्प्लेसमेंट है s1 s2 s3। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होगा और डिस्टेंसेस में क्या रिलेशन होगा? सपोज तीनों पाथ में डिस्प्लेसमेंट है s1 s2 s3, डिस्टेंसेस हैं d1 d2 and d3। टेल मी द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री एंड देन बिटवीन दीज थ्री। समझ में नहीं आ रहा। भाई पार्टिकल ए से चला, बी पे गया इस पाथ से, ठीक है। सेकेंड टाइम पार्टिकल ए से चला, बी पे गया उस पाथ से। तीसरी बार पार्टिकल ए से चला, बी पे गया इस पाथ से। तो तीनों में डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो तो हुआ ना। उनमें क्या रिलेशन है आपस में? और तीनों में डिस्टेंस भी कवर हुई, उनमें क्या रिलेशन है? मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये पूछ रहा हूं मैं। Displacement will be the same. हम्म। Displacement will be the same. क्यों जिया? सही बोल रही है नंदिनी? पता नहीं। हाँ। पता नहीं। क्यों? अभी तो किया था तुमने। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो अगर पार्टिकल शॉर्टेस्ट पाथ से जा रहा है तब भी डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, पार्टिकल इस पाथ हाँ से जा रहा है तब भी डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, पार्टिकल लंबे पाथ से जा रहा है तब भी डिस्प्लेसमेंट इतना होगा। तो तो तीनों सेम केसेस हुआ। में डिस्प्लेसमेंट तो सेम है। ठीक है। ए बी, ठीक है। तीनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। व्हाई? बिकॉज तीनों केसेस में फाइनल पोजीशन सेम है, तीनों केसेस में इनिशियल पोजीशन सेम है ए। तो तीनों मोशन में डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। अब मैंने में डिस्टेंस की वो लिखा है डेफिनेशन। डिस्टेंस क्या था? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड। तो तुम्हें किसमें लग रहा है डिस्टेंस सबसे कम है? 3 पाथ है ना, 1 2 3। वन, One, फिर उसके बाद, टू, two, फिर उसके बाद थ्री। three. ये रिलेशन आ गया डिस्टेंस में। Hmm. इतनी छोटी सी बात थी नहीं? अब टेल मी वन मोर थिंग, इज इट पॉसिबल दैट distance and displacement are equal? Is it possible that in some motion displacement is equal to distance? यस। कब होगा ऐसा? जब एक ही टाइप एक ही पास कवर हुए। तब पार्ट नहीं, एक ही नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ। when the particle goes by shortest path, है ना? लिख लो। magnitude और displacement, magnitude of displacement मतलब without direction, displacement equals to, magnitude of displacement equals to distance when a particle moves in a straight line path.
है ना? बाय द, तो समझ में आ गया ये तो बात। अब मुझे एग्जाम बताओ कि इज इट पॉसिबल दैट डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट? गिव एन एग्जांपल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस, सॉरी, डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट। लिख लो इसको, बेटर रहेगा। इज इट पॉसिबल दैट, is it possible that distance is less than displacement? सोच समझ के आंसर करूं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा है। डिस्टेंस में मालूम है एक्चुअल पाथ कवर्ड होता है ना? जबकि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पॉसिबल है? नहीं ना? बिकॉज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो इक्वल हो सकते हैं जब जब मैं व्हेन आई राइट मॉड, इसको बोलते हैं मॉड ऑफ एस, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन द पार्टिकल फॉलोज शॉर्टेस्ट पाथ। ये तो पॉसिबल है, ये तुमने आंसर कर दिया। लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से छोटा नहीं हो सकता। नॉट पॉसिबल। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से छोटा हो ही नहीं सकता। लेकिन इज इट पॉसिबल दैट डिस्टेंस इज मोर देन डिस्प्लेसमेंट? हम्म? इफ आई आस्क यू, Yes. यस, वो तो यहाँ दिख ही रहा था हमें, है ना? अभी जो हमने पाथ नंबर 2 और पाथ नंबर 3 में देखा, डिस्टेंस ज्यादा था। तो अब हमें एक बात समझ में आ गई कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इक्वल साइन कब आएगा दोनों में? जब पार्टिकल शॉर्टेस्ट पाथ में जाएगा तब। अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑलवेज मोर देन द डिस्टेंस। एक बार सो देख लो ढंग से, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे इनफैक्ट एक। नंदिनी, उसमें एक दो क्वेश्चन जो सॉल्व एग्जांपल है ना मोशन 1D में, वो जरूर कर लेना। बुक में। हाँ। सर मुझे एक डाउट था, क्योंकि कल क्लास नहीं होगी तो मुझे हाँ। आगे पढ़ना है। सर इंटीग्रेशन जो है हाँ। उसमें सर, मतलब वो साइन बनाते हैं हाँ, और फिर लिमिट सेट करते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आता, बता देता हूँ अभी। क्योंकि आई डोंट थिंक हम वहां तक पहुंच पाएंगे आज। हम्म। हम्म। सर आज हम पहुंच नहीं पाएंगे ना वहां तक, मेरा परसों पेपर है तो। हाँ, देखो ऐसा होता है कि इंटीग्रेशन व्हेन यू, दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। एक ही हम्म, फॉर्मूला तुम्हें याद करना है, टी रेज टू पावर एन डी टी। डी टी का मतलब होता है चेंज इन टी, टाइम। एंड द फॉर्मूला इज टी रेज टू पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। टी रेज टू पावर एन डी टी इज टी रेज टू पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। हम्म, तो
अगर सपोज मुझे इंटीग्रेट करना है टी स्क्वायर, तो इसको फॉर्मूले को यूज करके टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा? टी की पावर 2+1 बाय 2+1, दैट इज t³/3 हो जाएगा। हाँ। अगर सपोज आई वांट टू इंटीग्रेट 1/t⁻² dt, तो आई नीड टू ब्रिंग t in the numerator, then only I can integrate this। अब वापस वही फॉर्मूला लग जाएगा, t⁻⁻½ + 1 -½ + 1। तो इसका ओके। आंसर आएगा t⁻½/1/2। जिया, तुमने किया कैलकुलस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अभी? कर लिया है? ऑलमोस्ट। अच्छा, चलो फिर तो मैं बता देता हूँ तुम्हें और भी। तो सपोज यू हैव 2t³, वेलोसिटी जो होता है ना, जैसे ds/dt क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है वेलोसिटी, है ना? तो अगर मैं ds को फाइंड करूं तो ये हो जाएगा v/dt, है ना? एंड इफ आई इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, आई नीड टू राइट दिस s इन अ फनी मैनर। v/dt हो गया। वन का इंटीग्रेशन ds के रेस्पेक्ट में s होता है, तो ये आएगा v/dt। तो जब भी तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो यू कैन इंटीग्रेट द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इंटीग्रेशन ऑफ v/dt। इनफैक्ट नंदिनी का टेस्ट है, तो मैं थोड़ा सा ये आइडिया देता हूँ। तो सपोज हमें दे रखा है वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 3t² - 2t+6, ये हमें दे रखा है। एंड द क्वेश्चन इज फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो फॉर्मूले में। तो s कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन 3t² - 2t+6 dt। फिर इसको ओपन कर दो, अलग अलग कर लो। 3t² dt माइनस इंटीग्रेशन 2t dt प्लस इंटीग्रेशन 6 dt, ये हो जाएगा। जिया करना, 3t² का इंटीग्रेशन क्या आएगा? नंदिनी तुम बाकी दो का बताओ। 3t³/3। गुड। कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, और t² का हो जाएगा t2+1/2+1। नंदिनी इसका बताओ, 2t का क्या होगा? फिर इसका होगा 2। 2 बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है। हाँ। t⁻1 बचा, t⁻1+1/1+1। 6 बाहर निकाल दो, 1 बचेगा, 1 का इंडिकेशन t हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आ गया t³ - 2 से 2 कट गया, t² + 6t। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। फिर कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट 0 नहीं हो जाता, वो करना पड़ता है। वो हाँ, वो करना पड़ता है, बिकॉज मैंने आप उसको लिखा नहीं, वो डिपेंड करता है तुमने क्या लिमिट्स में दे रखी हैं, उसमें हाँ। वो आ जाएगा फिर। ओके। अब मान लो सपोज तुम्हें क्वेश्चन था कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इतना है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम 0 to 3 seconds। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम 0 to 3 seconds, ये पूछा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहीं पे एक्सप्रेशन में लोअर लिमिट 0 ले लेंगे, अपर लिमिट 3 ले लेंगे। टाइम का हमें दे रखा है 0 से 3 seconds, ठीक है? और फिर एंड में आके इसमें हम लिमिट डाल देते हैं। लिमिट कैसे डलता है? दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, दिस कॉल्ड अपर लिमिट। तो जहां भी टी आ रहा है, सबसे पहले अपर लिमिट डाल दो। टी की जगह वेर एवर यू हैव टी, पुट द अपर लिमिट।
Wherever you have t, write 3. After that, you put a negative sign. Wherever you have t, put the lower limit. यहाँ तो जीरो था तो मैंने जीरो डाल दिया, अगर वन होता तो वन डाल देता मैं. एंड देन यू सिंप्लीफाई. 27 minus 9 plus 18. That's your answer. 36 meter. तो whenever you have an integration along with the limit, इंटीग्रेट करो, पहले अपर लिमिट डालो फिर लोअर लिमिट डालो. अच्छा, आपने सिर्फ टी में 3 डाल दिया? हाँ, ओके। सब हर जगह टी में थ्री सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर माइनस साइन, और वेर एवर यू हैव देन यू टी को जीरो डाल दिया, लोअर लिमिट डाल दिया. सिमिलरली जैसे तुम्हारा ये आ सकता है, डेराइव द सेकेंड इक्वेशन यूजिंग इंटीग्रेशन, यूजिंग कैलकुलस मेथड. या तुमने भी किया होगा ना ये, कि यूजिंग इंटीग्रेशन और यूजिंग कैलकुलस डेराइव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अभी नहीं किया है। है ना. देखो अभी कर लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन मोशन तुम्हें मालूम है ना क्या होती है, मैं वो भी डेराइव करता हूँ. वो अभी हम पढ़ेंगे शॉर्टली. एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है व्हेन द वेलोसिटी, अभी हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी में पार्टिकल की वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, सेम थी. बट अगर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के साथ, तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन. जैसे बस है, स्कूल तुम जाते हो बस से, बस रुकी हुई है घर के सामने, तुम बैठे, देन द ड्राइवर विल एक्सेलरेट द बस, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना. फिर पता लगा सामने से भैंस आ गई, उसने एकदम से ब्रेक मार दिए, तो वो डिसेलरेट कर रही है, उसने ब्रेक लगा के वेलोसिटी को डिक्रीज करे, जीरो कर दिया. फिर सपोज रेड लाइट हट गई, ग्रीन लाइट है, तो वापस वो एक्सेलरेट करेगा. पूरा रोड खाली है तो फिर हो सकता है वो यूनिफॉर्म स्पीड से जाए. सो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. So acceleration is basically change in velocity dv by dt. d is dv का मतलब ये ना d into v. dv मतलब small change in velocity. dt का मतलब small change in time. तो acceleration is always change in velocity with respect to time. अब मैं थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ. dv इज इक्वल टू a dt. यहां तक बात समझ में आ गई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. ऑन इंटीग्रेशन इसको इंटीग्रेट करो. इंटीग्रेशन इज बेसिकली राइटिंग s in a funny manner, है ना. लिख दिया मैंने वो. यहाँ तक ऑल क्लियर. अब जब टाइम जीरो था, जब मोशन हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया था, तो उस समय उसकी वेलोसिटी थी u. यहाँ पे इंटीग्रेशन में dt आ रहा है, यहाँ पे dv आ रहा है. तो इस साइड में टाइम की लिमिट डलेगी. जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी u थी, बट आफ्टर सम टाइम t, वेलोसिटी इज बिकम v. u इज बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी. ये तुमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है. कोविड कब था? सिक्स सेवेंथ क्लास में, नाइन्थ में, कब था तुम्हारे लिए? 6 and 7। ओके, ठीक है, फिर तो तुम्हें याद होगा. v इज फाइनल वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू t. इज इट ओके विद यू? दूसरी बात, वन का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x होता है, वन का इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में t होता है, वन का इंटीग्रेशन dv के रेस्पेक्ट में v होता है, वन का इंटीग्रेशन ds के रेस्पेक्ट में s होता है. हमेशा याद रखना, ठीक है. तो अब मुझे बताओ, लेफ्ट साइड में वन का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं? v के रेस्पेक्ट में. तो क्या आना चाहिए लेफ्ट साइड में? वेलोसिटी। है ना. या अदरवाइज तुम एक कॉमन सेंस के लिए मान लो कि डिफरेंशिएशन एंड द इंटीग्रेशन आर द ऑपोजिट प्रोसेसेस, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं. तो इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन काट देगा, वी बच जाता है. पर अदरवाइज वन का इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट वाइज करो तो वी हो गया लेफ्ट साइड में, ठीक है. लेकिन इसमें लिमिट्स हैं.
लोअर लिमिट क्या है u, अपर लिमिट क्या है v। क्लियर। ए कांस्टेंट है, ए एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कांस्टेंट है, यहाँ भी वन बच जाएगा, तो वन dt हो जाएगा। मैं पहले एक बार लिख देता हूँ, वन dt। कांस्टेंट टर्म यू कैन ऑलवेज टेक आउट फ्रॉम द इंटीग्रल, कांस्टेंट टर्म को हमेशा बाहर निकाल सकते हैं। अब लेफ्ट साइड में लिमिट कैसे डालोगे? अपर लिमिट कौन सा है जिया? v। टी। अच्छा वी। हाँ, v की जगह v डाल दिया मैंने, फिर माइनस साइन। नंदिनी लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे? u। v की जगह u लिख दो, इक्वल टू a। वन का इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में क्या होगा? t। लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट इज t। तो v माइनस यू इज इक्वल टू a, अपर लिमिट t की जगह t डाल दिया, माइनस साइन t की जगह जीरो डाल दिया। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लो कर लो बात। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डेराइव कर दी, हो गई डेराइव। तो यूजिंग कैलकुलस वी हैव डेराइव्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या हुआ नंदिनी? थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया था, मैं क्यों? समझ नहीं पाई। तो भाई, ये समझ में नहीं आया मुझे। कौन सा पार्ट? ये ए फिर टी देन लिमिट टी जीरो। ये वाला। हाँ, इसके नीचे वाला। वन का इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में t होता है, ए तो बाहर हाँ निकाल दिया कांस्टेंट था, वन का इंटीग्रेशन d के रेस्पेक्ट में t होता है। हाँ तो इंटीग्रेशन साइन हटा दोगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे। हाँ। लोअर लिमिट जीरो है, अपर लिमिट t है। हम्म, तो अब लिमिट कैसे डलेगी? जो भी वेरिएबल यहाँ पे उसकी जगह ये डाल दो। सपोज अपर लिमिट होती फाइव, लोअर लिमिट होता टू, तो मैं क्या करूंगा? इसकी जगह फाइव डालूंगा, माइनस साइन, इसकी जगह लोअर लिमिट डालूंगा। यहाँ पे टी एन जीरो था, टी माइनस जीरो कर दिया। ओके ठीक है। तो आई डिराइव्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यूजिंग कैलकुलस डिराइव्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद है कौन सी है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। I'll start with the first equation. We know v is equal to u plus at। v क्या होता है? ds by dt। वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। फिर dt को राइट साइड ले जाओ, इज इट फाइन नंदिनी? अब चुपके से दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। यहां तक क्लियर है बात? अच्छा। मान इधर dt है, इधर ds है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की लिमिट डलेंगे, यहाँ पे टाइम की लिमिट डलेंगे। सपोज जब हमने मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया जीरो टाइम पे, तो डिस्प्लेसमेंट मान लो जीरो था। जब टाइम टी हो गया तो डिस्प्लेसमेंट मान लो एस हो गया। जब हमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया था पार्टिकल का, टाइम जीरो था, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो था। जब टाइम टी हो गया तो डिस्प्लेसमेंट एस हो गया। तो मुझे ये बताओ, लेफ्ट साइड में किसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तुम? वन का। वन का विद रिस्पेक्ट टू एस, क्या होगा? वो एस हो जाएगा, लिमिट जीरो टू एस। राइट साइड को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? अलग अलग ओपन कर लो पहले, या तो एक हो जाएगा यू डी टी जीरो टू टी प्लस ए टी डी टी जीरो टू टी। मैंने अलग अलग कर दिया।
लेफ्ट साइड में तुम लिमिट भी डाल सकते हो। लेफ्ट साइड में लिमिट डालो, देखो क्या आ रहा है। एस की जगह एस माइनस एस की जगह 0। यू जो था वो था इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की कांस्टेंट होती है, मैं गिवन है वो। तो पहले इंटीग्रेशन में यू बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बचेगा 1 dt। सेकेंड इंटीग्रल में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, टी वेरिएबल है, टी को अंदर रखना पड़ेगा मुझे। इज दिस पॉइंट क्लियर? सर इसका क्या मतलब है कि टी वेरिएबल है इसमें? हाँ, क्या? सर टी हमने अंदर से छोड़ा, ए बाहर निकालेंगे। dt, जो dt होता है ना वो वेरिएबल कहलाता है। जैसे लेफ्ट में ds, हाँ यहाँ पे s वेरिएबल था, अगर s होता तो मैं बाहर नहीं निकाल सकता था उसको। यहाँ हाँ। पे dt है तो मतलब हम t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब t इज अ वेरिएबल। t को छोड़ के बाकी सब कुछ कांस्टेंट माना जाएगा। अच्छा ओके, बिकॉज टी की, ठीक है। t को छोड़ के बाकी सब कुछ कांस्टेंट माना जाएगा। अब बताओ 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? अभी किया था ना तुमने। 1 का इंटीग्रेशन हमेशा t हो जाएगा। हम्म, लिमिट 0 से t की पावर 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? t² बाय 2, लिमिट 0 to t। अब फिर लिमिट डाल दो। लिमिट कैसे डलती है? t की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। t की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यूजिंग कैलकुलस वी हैव डिराइव्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आल्सो। अब क्या बचता है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है थर्ड इक्वेशन, बताओ? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as इज द थर्ड इक्वेशन। सर हाँ। सर ये 0/2। 0 हो गया ना, तो 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज 0। हाँ 0 हो गया वो। नहीं अपर वो, लिमिट, अपर लिमिट टी था ना, टी डाल दिया हाँ पहले, फिर लोअर लिमिट 0 था, टी की जगह 0 डाल दिया। अच्छा ओके, टी स्क्वायर माइनस। सर फिर अपॉन टू क्यों किया आपने? जहां जहां टी था, ये t² बाय 2 ही तो था ये। दिस इज t² बाय 2। विच इज टाइम। तो t² बाय 2 माइनस t² बाय 0, 0² बाय 2। क्लियर? आगे बढ़े। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर तुम देखोगे, कौन सा वेरिएबल नहीं आ रहा है बताओ मुझे? फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या चीज नहीं है? टी। टाइम नहीं है ना, इसमें टी की टर्म नहीं आ रही है। बट हमें तो ये की फॉर्मूला मालूम है, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। टी मुझे हटाना है, टी कैसे हटेगा भाई? टी हटाने का एक तरीका है कि इसको चुपके से ds से मल्टीप्लाई कर दो, ds से डिवाइड कर दो। कुछ चेंज तो नहीं किया ना हमने? वी हैव जस्ट मल्टीप्लाई बाय ds एंड डिवाइड बाय ds। अभी dt हटा नहीं है। कैसे हटाएंगे? एक काम करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज दीज टू, क्या बन जाएगा? dv/ds और ds/dt। ये बात समझ में आ गई? ds/dt क्या होता है? अभी किया था तुम लोगों ने। ds/dt इज वेलोसिटी, v होता है ये। उसको मैंने v लिख दिया।
change in displacement, change in time is velocity. Change in displacement by change in time is velocity, वो हमने रिप्लेस कर दिया. अब t हम हट चुका है. Now we can integrate this. इसको इंटीग्रेट करते हैं हम. मैं v dv को लेफ्ट साइड में रख रहा हूं. a ds को मैं राइट में लिख रहा हूं. मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. v dv इज इक्वल टू a ds. ठीक है. और इंटीग्रेशन v dv a ds. अब जब डिस्प्लेसमेंट जीरो था तो इनिशियल वेलोसिटी u. लेफ्ट साइड में dv आ रहा है ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी की लिमिट डालेंगे. राइट साइड में ds आ रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की लिमिट डालेंगे. तो जब इनिशियली डिस्प्लेसमेंट जीरो था, जब मोशन शुरू हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी u था. और जब डिस्प्लेसमेंट s हो गया तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई v. क्या हुआ नंदिनी, टाइम हो गया? थक गई? तो इसको जरा देखो, इसमें कोई डाउट है? अब तुम लोगों को पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी. 10th क्लास में तो बड़ा सिंपल था ना. डेफिनेशन याद कर ली, क्या पोल है, क्या रेडियस कर्वेचर है, एक आध छोटा मोटा फॉर्मूला था, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, आगे मार्क्स. 11th में इतने सारे न्यूमेरिकल्स हैं. और एंड यू हैव डन द बेस्ट पार्ट दैट यू हैव स्टार्टेड द क्लासेस वेरी अर्ली, नो. तो अभी तो तुम्हारे दोस्त लोग मस्ती कर रहे होंगे. जब फर्स्ट टर्म आएगा बाय देन दे रियलाइज कि फिजिक्स कितना डिफिकल्ट है. फिजिक्स पहले पढ़ लिया होता शायद. तो फिजिक्स को अगर साथ साथ करते रहोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. 12th तक यू विल बी वेरी कंफर्टेबल. वरना सब बहुत डरते हैं फिजिक्स से. वो लोग ही डरते हैं जो कि पढ़ते नहीं है, मतलब शुरू से. अब जरा देखो, ये v वेरिएबल है, तो v का इंटीग्रेशन dv के रेस्पेक्ट में कितना होगा? v की पावर 1+1 डिवाइड बाई 1+1. लिमिट क्या है? u एंड v. राइट साइड में वेरिएबल s है, मतलब a कांस्टेंट माना जाएगा. बाहर निकाल दो, 0 to s 1 ds होगा ये ठीक है. अब फिर ये 1+1 है ना, उसके नीचे भी. अभी तो फॉर्मूला क्या था? ओके. x⁴n वाला वही यूज हुआ है. अभी तो लोग सीनियर्स बोल देते हैं ना, अभी तो मस्ती करो, 11th में 12th में पढ़ लेना, अभी क्या है. तो दिस इज तो v स्क्वायर बाय, हाँ. जो इसका ग्राफिकल मेथड होता है, क्या? हाँ. सिर्फ इसका वो भी आ रहा है ना? क्या रहा है, एरिया वाला? नहीं नहीं, सिर्फ जो ग्राफ से निकालते हाँ, हैं. ग्राफ से, हाँ वो कर लेना बुक से ना. वो तो सिर्फ. इजी है, वो तो तुमने 9th में भी किया है. नहीं, मैं कह रही हूँ सर कि मतलब ऐसे ही आएगा ना कि लाइक डिराइव द फर्स्ट हाँ हाँ इक्वेशन. हाँ हाँ. अभी राइट साइड में 1 का इंटीग्रेशन ऐसे है, और लिमिट है 0 to s. अब लिमिट डाल देते हैं. v की जगह v, फिर माइनस साइन, v की जगह u, राइट साइड में s की जगह s की जगह 0. v² माइनस u² डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू as. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया. So we have derived all three equations. क्वेश्चन ये भी आ सकता है दैट फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन. कर सकते हो. क्वेश्चन लिखो, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन.
So from second to first. From the second equation, derive the first. सेकंड से स्टार्ट करना है और पहली इक्वेशन चाहिए तुम्हें. हमें दे रखा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और हमें डिराइव करना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो इस बार हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. डिफरेंशिएटिंग द एंटायर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. लिख लो. ऑन डिफरेंशिएशन लिख लो. सो डिफरेंशिएशन का मतलब डी बाई डी टी करना है दोनों साइड में. डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है? डी बाई डी टी ऑफ टी रेज टू पावर एन इज एन टी एन माइनस वन. दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन. तो लेफ्ट साइड हो गया डी एस बाई डी टी. इसमें ब्रैकेट खोलो. डी बाई डी टी ऑफ यू इंटू टी डी बाई डी टी ऑफ ए टी स्क्वायर. डी एस बाई डी टी द वेलोसिटी. यू कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो. दिस इज डी टी बाई डी टी. ए कांस्टेंट है, हाफ था ना यहाँ पे, बाई टू. ए बाई टू बाहर निकालो. डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर और फिर फॉर्मूला यूज कर लो डिफरेंशिएशन का. डी टी से डी टी कट गया इस वाले में पहले में. तो v इज इक्वल टू यू आ गया. टी टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू टी हो गया. टू से टू कट जाएगा. लो कर लो बात. v इक्वल टू यू प्लस ए टी. तुम्हें भी लग रहा होगा ना कितना सिंपल है ना फिजिक्स. तो इजी हो गया. देखो हर चीज करने से पहले हो जाती है. So in case you come across a question that using the second equation derive the first, you can use this. इसमें डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है. सर हम्म. जैसे 1 से 2 से 3 जाने में हम हम्म. इंटीग्रेशन करते हैं, सो 3 से 2 से 1 जाने में डिफरेंशिएशन. हाँ 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 राइट. जी या समझ में आ गया. हाँ जी. एक क्वेश्चन करो. This is a particle which starts from A, is moving in a circular path of radius 7 meter. Starts from A, it reaches at B, then it reaches at C, and then it reaches at D and back to A. The total time taken to complete the entire circle is 8 seconds. सबसे पहले तुम्हें ये बताना है कि ए से बी में जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट और कितना डिस्टेंस है. फिर ए टू सी जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्टेंस है. ए टू डी में कितना डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्टेंस है. और फाइनली फोर्थ पार्ट में ए से वापस ए में आने में कितना डिस्प्लेसमेंट है कितना डिस्टेंस है.
ये डी पॉइंट है, यहाँ पे लिख लो डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। fill this table. तो पाई को 3.14 ही ले लो ना। पाई के टर्म में छोड़ सकते, पाई को 22/7 ले लो। ओके। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यू कैन ज्वाइन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, है ना। और डिस्टेंस के लिए लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड करना पड़ेगा। फॉर द डिस्टेंस लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल पॉइंट को, फाइनल पोजीशन को इनिशियल पोजीशन से ज्वाइन कर दो। तो जैसे ए से बी मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो यू ज्वाइन ए एंड बी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 7 मीटर उसका रेडियस है, पाइथागोरस लगा दो, है ना। द रेडियस इज 7 मीटर, सो यू कैन अप्लाई पाइथागोरस। कितना आ गया, 7² + 7², 7√2। ठीक है, राइट राइट ट्रायंगल बन गया ना ये। और डिस्प्लेसमेंट कितना, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट 7√2 आया ना। तो इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं 7/2 हाँ में। हाँ। और डिस्टेंस कैसे निकलेगा, सो वन अपॉइंट डिस्टेंस होगा फोर 2πr, पूरा सरकमफ्रेंस का 1/4। तो 2πr/4। तो 2 × 22/7, r इज ऑल्सो 7/4। 7 से 7 कट गया, 11, है ना। 11 मीटर आ गया। देखो ये ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, A to C। A to C में क्या हो रहा है, A to C में द पार्टिकल, फाइनल पोजीशन C हो गई, C को A से ज्वाइन कर दो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 14. यस, डायमीटर, 7 + 7 14। जबकि डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा 2πr/2, पेरीमीटर का आधा, 20. 22, है ना। हम्म। 22 हो जाएगा। A to D में क्या करोगे, D इज द फाइनल पोजीशन, आंखें बंद करके A से D ज्वाइन कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। वापस 7√2. 7√2। फिर डिस्टेंस कैसे करोगे, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ 11 11 11, 33 मीटर। फिर लास्ट पार्ट कर लो, वापस ए पे अगर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, और डिस्टेंस 44. राइट। तो एज यू कैन सी, डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा बड़ा ही आएगा या इक्वल आ सकता है।
सो दैट इज इट फॉर टुडे। इसको रिवाइज करना, फिजिक्स के लिए एक रूल बना लो, जो पढ़ाया जाएगा उसको सेम डे रिवाइज करो, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी फिजिक्स में। ठीक है। सो एंडिंग द क्लास, कोई डाउट हो नंदिनी तो पूछ लेना टेस्ट के लिए। ओके राइट, सी यू ऑन फ्राइडे। Thank you, sir. ओके।